हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 388th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। Chhatabur Farms presents Raj Ki Baat in association with Kamath Tendulkar Wealth Manager. My hospital partner is Crims Hospital. Home partner is Siddhivinayak Infrastructure. A big thank you to Globus ITI, Kamti, Tirupati Urban Cooperative Bank, Tricost, the chocolate brand now going global, and of course, Joshi Security Systems, Yuva Foundation, and Atmanirbhar Bharat partner, which is servicing वाला मोहन एंटरप्राइजेस plays a very important role in राज की बात। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज एक बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात होने जा रही है, बिकॉज प्लाज्मा डोनेट करना, मुझे ऐसा लगता है कि खून डोनेट करने से ज़्यादा आज की तारीख में महत्व रखता है। लेकिन उसके लिए जो सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव ले रहे हैं उनसे बात करना ज़रूरी है। जब पिछले साल लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन में जब एक किस्म की व्यवस्था की ज़रूरत थी, तब यंत्रणा, एडमिनिस्ट्रेशन शायद उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाया जितना एनजीओज ने किया। और उसमें भी एक एनजीओ उभरता हुआ दिखा जहां पर सिर्फ 7 महिलाएं सामने आती हैं, पैसे इकट्ठा करती हैं और बहुत कुछ ऐसा करती हैं जिसको जानना आज की तारीख में ज़रूरी है। मेरे साथ V7 फाउंडेशन से एक प्रथम मेंबर हैं और उनसे बात करना आज जरूरी है। मेरे साथ हैं मिस मोनिका भगवागर। मैम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू राज की बात। Hi, good evening. Ma'am, it's such an honor to speak to you. Ouch, really? That's not it. You're being too kind. No, ma'am, you're so important for me because you are an inspiration for me. I'm very humble. And ma'am, V7 is doing some great jobs since a year now. एंड मैम, ये जो जर्नी थी, जो पिछले साल लॉकडाउन लगा, तब से अब तक V7 फाउंडेशन ने जो काम किया उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। Yeah, I'll make it very quick because I would rather that you speak more to the doctor and to Akanksha. When the migrant labor issue had happened, the country was taken unawares, and so were the migrant laborers. And Nija Pathania approached me that, Monica, how can you help? And that's how I got connected with her. And my role was that help her to get funds to buy food items for all of them. And I got connected with her for we had the government college in Sadar Polytechnic and the Tuli Catering College in ahead of, I think, Koradi Road pe hai. So there were about 200-250 migrants all the time. So उनको खाना खिलाना, उनको entertain करना, उनका मोरल बढ़ाए रखना उनको. So it was a lot of hard work, but hats off to the Nirja and her team that time, who really did a fabulous job. So we realized that there is a lot of need for us to do things. लोग काम कर रहे हैं पर अभी हमको भी काम करना है. And when we did this work for the migrants, we realized that we need a proper association, and this was suggested by the police who was helping at that time कि मैडम आप लोग एक ग्रुप क्यों नहीं बनाए थे officially, so you can you'll be able to work better. And so that's how V7 was formed, really, with Nirja at the helm of affairs. And there's Nirja, there's Sara, there is Sushila, there is Preeti Valunchkar, Neha Patel, Alifia, and me. So we're 7 of us. And that's how we call ourselves, just simply V7. मैम, जब ये शुरू हुआ, आप सातों लोग साथ में आए, आपने काम करना शुरू किया, क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या हर्डल्स आए, और कैसे किस किस्म की मानसिकताओं को आप लोगों ने सुलझाकर उलझाकर चीजें कर ली? फर्स्ट टाइम until today, what have been the challenges? The first time, there was absolute chaos. And the basic challenge was to keep the migrants staying put over there. They were extremely scared. Their, जो बोलते हैं ना, मानसिक संतुलन, what is the word, Raj? मानसिक संतुलन. संतुलन. बिल्कुल ही डांबलडोल था. And I remember I had to physically hold back the men who wanted to run away from there, and they had their wives, little children, and they just wouldn't want to stay because they were awfully scared that in that migrant home we were putting them, they would feel it's like a jail. So that was one challenge, to hold them back, and in a COVID environment also, right? So that was a huge issue, how to keep the place clean, and about 200 people, unka khana pakana, unka rehen sehen, right till the nitty-gritties of soap, bathing soap, and their clothes. We organized their clothes, and then very shortly realized the kids are getting hassled. How would they spend their time? So organized games for them. People donated a lot of games like football, badminton rackets, floorboards. So
as we went along, the needs arose, and thanks to all our friends who really rose to the occasion and really helped out. Yeah. अब मैम वो वक्त आ गया है जब कहीं ना कहीं एनजीओस का रोल थोड़ा सा कम हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन इज हैज़ कम ऑन द फ्रंट फुट नाउ, लेकिन फिर भी प्लाज्मा डोनेशन को लेके V7 हैज़ बीन टॉकिंग in terms of helping out people, getting them connected to donation camps and things like that. So आपका क्या सोचना है, कैसे इस चीज को आगे बढ़ाएं? At the very outset, I'm not patting my back, but I really want to hand it to my team of V7. We are about 120 ladies, and trust me, whoever wants to join, I want them. The phones will start, clicking in the morning at 7 and go on 6:37, go on in the night till 12:32, constantly answering calls, rather messages. किसको बेड चाहिए, किसको वेंटिलेटर वाला बेड चाहिए, किसको मेडिसिन चाहिए, किसको डॉक्टर का हेल्प चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, कहाँ से खाना मिल रहा है, फ्री फूड, पेड फूड. So continuously the work was happening, and that really made me so proud of the lot, and I'm deeply grateful to that group of women. Till now they're working. काम खत्म नहीं हुआ है राज, काम अभी भी है. तो मतलब 2 दिन में थोड़े से पॉजिटिव पेशेंट्स हुए हैं तो काम खत्म नहीं हुआ है. The emotional setback, the financial setback, and the trauma that the families have gone through, now it'll all come into play. We are now looking at sort of rehabilitating people who've lost their livelihoods through this pandemic right now again. अब हमको काम मिल रहा है, NMC पुलिस हमको रेगुलरली अप्रोच कर रही है. जैसे कि वो एग्जाम्स हुए थे, about 12,000 students came into Nagpur to write the exams. उनका लॉकडाउन था, उनका खाना पीना कैसे? So we were approached by the police that can you help out? Again, all our friends rose to the occasion, gave us funds, gave us food items, and we organized it in 1 day's time. So again, that was something which was really something noteworthy. अभी आप कह रहे हैं कि NGO का काम कुछ नहीं है, अभी भी थोड़ा सा कम हो गया. मैं कह रहा हूं हमको भी कॉल आया अभी NMC फिर से कि we want to prep you girls to come here, you women to come here. So girls sound good. Yeah. and prepare the youngster team who's coming in there. In fact, Nija was supposed to be here, but she's been there since 6:30 in the morning, sitting there and answering calls even now, and also training the other boys and girls who will now be taking further calls. We are hoping and praying the third wave doesn't happen. We're hoping and praying it doesn't happen, but we just don't want to be caught off guard as it happened now. और दूसरी बात, अभी the next project for V7 given to us was called बढ़ते कदम. इसमें we were given the NMC schools, which we had to again rehabilitate them and bring them to a particular standard. But now again, since the second wave came, the project has been postponed. Right, ma'am. So the work is there. ठीक है, तो मतलब अभी तक सिर्फ V7 ने ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. Yes, and I hope for good reasons. All for good reasons. But then we also have one more person joining us from the city of Mumbai, and that is a very leading doctor who she works with Bridge Candy. अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, दीपशा, डॉक्टर दीपशा हमारे साथ जुड़ने वाली है. डॉक्टर दीपशा सुपर. हम उनसे बात करेंगे. Hi Deepsha ma'am, can you hear me? Hi Raj, I can hear you. Ma'am, first it's an honor to speak to you. You are a doctor at the Bridge Candy Hospital, Mumbai. Would like to know a few things about the plasma. अगर आप वो चीजें हमको बताएं. It is my honor, it is my pleasure to speak to you and to speak for V7 Foundation. I was just listening to Monica auntie, and she was talking about the kind of work she is doing. I think I abruptly lost the video there. But it gives us such positive motivation to see that not just, I think all the medicos and the people who are on front line, the defense, security, and everybody is getting all the credit. And all the claps for them, but then there are these NGOs, at least some people are coming out of their houses, even though it is a very tense environment outside, and trying to help those who are finding it very hard to, because these are very difficult times. मैम, मुंबई में भी कैसी सिचुएशन है? मुंबई में भी सिचुएशन कैसी है? नागपुर में तो हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा नंबर जो है वो कम हुआ है, पर मुंबई में कैसे हालात हैं?
Mumbai also has shown, Raj, I'm comfortable speaking in Hindi and English. So if you would want me to switch to Hindi, you just let me know. Whatever मैम हिंदी everybody is हिंदी comfortable. में बात करें तो और मजा आएगा। ओके ओके, तो देखिए नागपुर, जी मैं खुद नागपुर की हूँ। नागपुर वाज वेरी, बिकॉज आई थिंक नागपुर में द रूल्स वर नॉट, कभी भी नागपुर का थोड़ा सा चिल्ड आउट मेंटालिटी रहता है, बट जी बिल्कुल। केसेस हैव गॉन। इट इज सरप्राइजिंग, आई वुड से थोड़ा बहुत लॉकडाउन का असर है, but then there is also one factor that we should not ignore is टेस्टिंग बहुत कम हो गई है अभी। So that हम्म। also actually adds to the fact that इसलिए इतने केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उतने टेस्ट भी अब नहीं हो रहे हैं। जी बहुत सारे हम लोग के हॉस्पिटल में तो ऑफ कोर्स पेशेंट एडमिट करने के पहले इवन द अटेंडेंट्स आर आस्क्ड टू डू द टेस्ट नाउ, तो वो तो कोई कर, हम्म। सभी कर रहे हैं। रेगुलरली अगर जिसको अभी सबको पता है कि बुखार आया, खांसी आया, टेस्ट गया, वीकनेस हुआ, इवन लूज मोशंस हुआ, यानी ऐसा समझो कि कोविड ही है, करके वो घर में जी बैठ जा रहे हैं, 14 दिन बंद कर दे रहे हैं। दैट इज अ गुड थिंग, बट दैट ऑल्सो मीन्स हम्म। इतने सारे लोग निकल के टेस्ट नहीं कर रहे हैं जो पहले सब कर रहे थे। सो जी एंड एंड इवन अब 14 डेज बाद टेस्ट नहीं करना है, ऐसा तो रूल ही आ गया है। आई मीन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू इट, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो ऐसे कर करके भी देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग टू द फैक्ट कि वी आर सीइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। ऑफ कोर्स लॉकडाउन एंड वैक्सीनेशंस आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, बट वी शुड जी नॉट टेक दिस वन लाइक हमने छोड़ दिया एंड सब बाहर आ गए, ट्रेन चालू हो गया, सब हो गया, and now we are suffering the second wave, so we should not do that same mistake again. हम्म। बट मैम नागपुर अभी भी वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहा है, लेकिन प्लाज्मा डोनेशन की शुरुआत नागपुर शहर में पिछले कुछ दिनों से हुई है, लेकिन V7 फाउंडेशन हैज टेकन द इनिशिएटिव टू टेक इट टू द टू टेक इट टू एवरीबॉडी दैट जिनको जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। अब वो कौन लोग हैं जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, उसके बारे में और प्लाज्मा के बारे में वो बातें, स्पेसिफिकली लेडीज के बारे में हम बात करना चाहेंगे और आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे और किस किस्म की महिलाएं आगे बढ़कर प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए पहले राज हमें ये समझना चाहिए कि ये प्लाज्मा होता क्या है, ये कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा होता क्या है, और क्यों ये सडनली इतना इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब जी देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, नॉन मेडिकल एग्जांपल्स के साथ, कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका क्या रोल है कोविड के ट्रीटमेंट हम्म, में। तो सबसे पहले देखिए जी हमारे ब्लड में सेल्स होते हैं, व्हाइट सेल्स, रेड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सेल्स होते हैं, और ये सेल्स एक फ्लूइड में बहते रहते हैं जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा जी का काम क्या है कि वो पूरे ब्लड को यहाँ वहाँ घुमाएगा, ट्रांसपोर्ट कराएगा, और जो भी उसका एक्सचेंज करने के लिए होगा, उसके न्यूट्रिशन के लिए होगा, वेस्ट होगा, जो कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें होगी, वो सब प्लाज्मा में होगा। तो उसमें प्रोटीन जी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, एंटीबॉडीज होता है। अब जी ये होता है प्लाज्मा। कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा मतलब, कॉन्वालेसेंट इज एन इंग्लिश वर्ड जिसका मतलब होता है रिकवरिंग। तो ऐसा जी पेशेंट जो कोविड से रिकवर कर रहा है, उसकी प्लाज्मा को बोलेंगे कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा। ठीक है, हम्म। इसका मतलब वो खुद तो कोविड के बाहर आ गया, रिकवर कर रहा है, और उसके प्लाज्मा में अभी उसकी प्लाज्मा की इंपॉर्टेंस क्या है। अब जी देखिए, समझिए, समझो हमारे घर में हम रात को सोए हुए हैं और एक चोर घुस गया। ठीक है, जी अब चोर घुस गया तो हम क्या करेंगे, हम सब उठ जाएंगे, और हमारे घर में जो भी वेपन्स होंगे, डंडा होगा, चाकू होगा, छुरी, जो भी कुछ होगा, हम सब निकाल के वी विल ट्राई एंड मैम, अटैक द मोनिका वायरस मोनिका द मैम के घर में गन है। मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ। जी तो इसलिए V7 फाउंडेशन बन जाता है। जी सबके बस की बात नहीं है वो। जी तो आपने फेसबुक लाइव पे बोलते तो नहीं नहीं चलता है, इतना बोलिए। हम आम आदमियों के घर में चाकू, छुरी और डंडे वंडे, झाड़ू पोछा, हम तो यही सब निकालते हैं। तो ये जी चोर जब घुस गया, यानी वायरस हमारी बॉडी में घुस गया, अभी उसको रोकने के लिए सबसे पहले हमारी बॉडी फाइट कर, हम अपने आप ही, पुलिस आएगी, सब आएगा, कुछ भी दूसरी आएगी, उसके पहले हमारे पास जो इफेक्ट, जो भी चीजें जिससे हम अटैक कर सकते हैं, वो करेंगे। ठीक है, अब हम, मेरे घर में 5-6 लोग हैं, हम सब यंग जवान लोग हैं, हम सब ने फाइट किया, हमने चोर को रोक दिया वहीं के, और वहीं से भाग गया वो। इसका मतलब जी मेरी बॉडी में वायरस घुसा, मेरी बॉडी अच्छी स्ट्रांग थी, वायरस थोड़ा इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया हमारे सामने, हमने फाइट किया, हमने एंटीबॉडीज बनाई, जो वेपन्स होते हैं हमारे, हम्म, हमारी बॉडी जी बनाती है उनको, हमने वो एंटीबॉडीज बनाई, और वो एंटीबॉडी से ही वायरस को भगा दिया, और वो चला गया। तो मेरे बॉडी में अच्छा एंटीबॉडीज बन गई। मेरे जी घर में एंटीबॉडीज रेडी। ठीक है, अब हम्म, ये चोर जाके सामने वाले के घर में जाता है,
अब सामने वाले के घर जी में थे ओल्ड कपल, एक ओल्ड बुढ़ा बुढ़ी थे सामने, और अभी उनके घर में चोर घुस गया। अब वो तो नहीं झगड़ पाएंगे ना, वो तो डंडा नहीं निकाल पाएंगे, सब नहीं कर पाएंगे। तो जब मेरे घर में एंटीबॉडीज रेडी है, तो मैं मेरी एंटीबॉडीज ही उनको दे दूं और उनकी मदद कर दूं वो करने में, इन्फेक्शन, चोर से झगड़ने में। इसको जी बोलते हैं कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की ट्रीटमेंट जो हो रही है। तो एक पेशेंट जो कोविड से रिकवर कर गया, उसने एंटीबॉडीज बना दी, अब वो एंटीबॉडीज को लेके हम एक दूसरे पेशेंट में डालते हैं जो कोविड, जिसको अभी अभी हुआ है और जिसको ऐसा सिवियर कोविड हुआ है कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत पड़ गई। तो उसकी मदद जी हम कर देते हैं वो एंटीबॉडीज से जो एक हील हुए वो पेशेंट ने ऑलरेडी बना के रखा है। ठीक है। तो कोविड पेशेंट के प्लाज्मा में ये एंटीबॉडीज आती है, तो ये प्लाज्मा लिया जाता है। तो प्लाज्मा लेने का भी एक अलग स्पेशल टेक्निक होता है, ये ब्लड डोनेशन जैसा नहीं होता है। एक अलग स्पेशल मशीन होती है जिसको फेरिसिस मशीन बोलते हैं, जिसपे वो डोनर को अटैच किया जाता है, उसमें से उसका ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लाज्मा अलग कर लेते हैं, बाकी का ब्लड उसको लौटा देते हैं कि रखो तुम अपने पास, जी और सिर्फ ये जी प्लाज्मा लिया जाता है। तो एट अ टाइम अराउंड 400 ml 450 ml कलेक्ट किया जाता है, और उसमें से 2 बैग्स बनते हैं, यानी एक डोनर 2 पेशेंट्स की मदद कर सकता है। ये जो प्लाज्मा उसने डोनेट किया, इसमें वो एंटीबॉडीज होती हैं जिससे जो उसने बनाई हुई है अपने कोविड फाइट करने के लिए। अभी ये उस जी पेशेंट को दिया जाता है जिसको कोविड है, लेकिन इसका भी बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। अगर अभी समझो वो चोर अभी अभी घुसा है, तो उसकी मदद भी प्लाज्मा से हो सकती है। अगर चोर एकदम ही कब्जा कर चुका है एंड काफी सिवियर इन्फेक्शन हो चुका है, उसके बाद प्लाज्मा का कोई रोल नहीं है। ऑफकोर्स गन्स वन्स अलग है, तो जिसके बाद वो बात अलग है, लेकिन ये छोटी मोटी एंटीबॉडीज का रोल तब नहीं आता जब काफी सिवियर कोविड हो चुका हो। तो जी ऐसी गाइडलाइंस आई हुई हैं आईसीएमआर से, और गवर्नमेंट की सारी जो गाइडलाइंस है दैट सेज कि अर्ली फेज ऑफ कोविड, यानी पहले 3 से 7 दिन ऑफ सिम्टम्स, आज मुझे बुखार हुआ तो पहला हफ्ते में ही आई शुड रिसीव कोविड, नहीं तो उसका ज्यादा फायदा नहीं है, मैक्सिमम 10 डेज अर्ली फेज जी में। तो ये होता है कोविड प्लाज्मा का ट्रीटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आपने मुझसे सवाल पूछा कि ये दे कौन सकते हैं, कौन कौन लोग को प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं, तो और मैम आप ये स्पेसिफिकली आप, मुझे समझाएं, मैम हाँ। आप ये मुझे समझाएं, उसके पहले मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। आप अगर ऐसे चोर को समझाएंगे तो वो कभी चोरी नहीं करेगा वैसे। मैं अभी जाके आईसीयू में ठीक समझा है। के आती हूँ उसको। पूरा दिन यही करती हूँ मैं, पर आजकल के चोर बड़े म्यूटेंट होते जा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। सुनेंगे मैम तो सुनेंगे। जी बताएं कि कौन तो आपका सवाल, ये जी। प्लाज्मा दे सकता है, एंड स्पेशली क्या मैरिड वुमेन भी प्लाज्मा दे सकते हैं? तो देखिए, अभी मैरिड वुमेन के टॉपिक पे हम आते हैं। पहले मैं आपको और सबको जो सुन रहे हैं ये लाइव शो, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि कौन कौन ये प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। ऑफकोर्स वो पेशेंट को कोविड होके जाना चाहिए, तभी उसके पास ये एंटीबॉडी होगी। तो कोविड जी होने का एक प्रूफ होना चाहिए, ये नहीं उसका आरटीपीसीआर या एक एंटीजन टेस्ट, उसका कोई तो एक टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ होना चाहिए, प्रूविंग दैट जी ही और शी हैज हैड कोविड। दूसरी बात है कि वो खुद भी तो फिट होना चाहिए ना जी प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। तो फिटनेस क्राइटेरिया जी में 2-3 क्राइटेरिया हैं, जैसे कि उसकी एज 18 to 60 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, वेट उसका 50 केजीज के ऊपर होना चाहिए, उसका हीमोग्लोबिन, बेसिक क्राइटेरिया ऑफ फिटनेस जो मैं बता रही हूँ, अनीमिया वगैरह उसको खुद को नहीं होना चाहिए ताकि वो दूसरे की मदद करने लायक हो। ठीक है। जी दूसरी बात है, खुद कोविड से रिकवर हुआ होना चाहिए, मतलब कि उसको सिम्टम्स जाके एटलीस्ट 14 दिन तो हो जाने चाहिए। 2 वीक्स ऑफ जी सिम्टम फ्री उसका एक इंटरवल होता है जो बहुत जरूरी है, ताकि अगर वो खुद रिकवर कर चुका है तभी उसकी एंटीबॉडीज बहुत स्ट्रांग होंगी। ठीक है। तीसरी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि उसके पास खुद के पास कितनी एंटीबॉडीज है। अगर एक डंडा लेके वो आया है तो एक डंडे से तो कुछ नहीं होने वाला है, अगर उसके पास काफी सारे वेपन्स हैं तो एक एंटीबॉडी की टेस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं कोविड आईजीजी आईजीएम टेस्ट। पहले क्राइटेरिया में आया था कि इट शुड बी एटलीस्ट अबव 8, बाद में रियलाइज किया कि 8 की अबव भी हुई तो भी कोई ग्रेट नहीं है, अभी 13 का क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 13 के ऊपर अच्छा उसका आईजीजी लेवल होगा, तो ही समझा जाएगा कि हाँ भाई तुम्हारे पास ऐसी कितनी तो भी वैल्यूएबल एंटीबॉडीज है जो दूसरे की मदद तो कर पाएगी। उससे कम अगर जी तुम्हारी है तो दूसरे की क्या ही मदद होगी। ऐसा ऐसा क्राइटेरिया है। तो ओके ये सब चीजें हैं। नाउ स्पेसिफिकली विमेन का बात जो करें अगर हम, तो मैरिड वुमेन, यानी एक्चुअली मैरिड वुमेन इज अ वेरी वेग क्राइटेरिया। क्राइटेरिया है इसकी, अगर एक विमेन को कभी भी लाइफ में कंसीव किया हो,
यानी उन्होंने कभी भी, अगर उसको बच्चे नहीं भी हुए हो, सपोज फॉर सम रीजन उनका कोई अबॉर्शन हुआ हो या मिस कैरेज हुआ हो, मीनिंग कभी भी एक प्रेगनेंसी हुई और वो वट एवर उस प्रेगनेंसी का फ्यूचर था, पर अगर ऐसी वुमेन है तो उनका यूजुअली प्लाज्मा नहीं लिया जाता। इसका रीजन ओके। एक्चुअली बहुत साइंटिफिक है। एक बहुत डीप साइंस है जिसका एक एक वर्ड में बोलती हूँ, जिसको बोलते हैं HLA। तो जैसे मैं आपको समझा रही हूँ एंटीबॉडी एंटीबॉडी एंटीबॉडी, वैसे ये प्रेगनेंसी की स्टोरी सडनली प्लाज्मा में कहाँ से आ गई वो भी मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जब एक बेबी बनता है तो एक मदर का सेल आता है, एक फादर का सेल आता है, उससे एक बेबी बनता है, ठीक जी। है। अब फादर का सेल तो मदर की बॉडी के लिए एक आउटसाइड सेल ही हुआ ना, तो मदर की सही बात। बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। इससे मदर की बॉडी को या बेबी की कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ये एंटीबॉडी लेके आप किसी तीसरे को दे देंगे तो उसको नुकसान होने का चांसेस बहुत हाई होता है, स्पेशली लंग डैमेज। एक साइंटिफिक वर्ड है जिसको बोलते हैं ट्राली, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अक्यूट लंग इंजरी। यानी अगर आप ऐसी वुमेन जिसको एंटीबॉडीज बनी हुई हैं अगेंस्ट, जो एक प्रेगनेंसी में एंटीबॉडीज बनती हैं विच आर नॉट यूजुअली हार्मफुल, पर अगर आप वो एक जी। तीसरे इंसान को देंगे तो उसको लंग डैमेज होने का चांसेस हाई रहता है। और कोविड में तो लंग की ही बीमारी है, उसमें और आपने ऐसी एंटीबॉडीज डाल दी तो आप मदद तो नहीं, आप तो ज्यादा नुकसान ही कर देंगे। सच बात। इनफैक्ट ICMR की एक स्टडी हुई है जिसमें ऐसा देखा गया है कि जिनको एक से ज्यादा बच्चे हुए हैं, ऐसी वुमेन की प्लाज्मा से 20% कोविड पेशेंट्स और ज्यादा सिवियर हो गए थे। So it is kept, it is, I mean, there's a very deep science behind it, but that is why nulliparous women का plasma is usually avoided. अब मेरे को एक बात बताइए, एक लड़की जाएगी ब्लड बैंक में कि मेरे को प्लाज्मा डोनेट करना है, उनसे पूछेंगे कि आपको बेबीज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कोई ये पूछेगा कि आपको कोई अभी अबॉर्शन हुआ है क्या, कोई मिसकैरेज हुआ है क्या? इतना डिटेल में हिस्ट्री ना कोई बताता है ना कोई पूछता है। इसलिए एज अ पूछता भी जनरल नहीं। अम्ब्रेला रूल इंडिया में स्पेसिफिकली, अब्रॉड ऐसा नहीं होता, जी। अब्रॉड के रूल्स अलग हैं, बट इंडिया में स्पेसिफिकली एक ब्रॉड अम्ब्रेला कैटेगरी कर दी गई है, इसलिए विमेन का प्लाज्मा यूजुअली वो लोग अवॉइड कर रहे हैं। बट अगर सपोज इमरजेंसीज हैं, देयर इज अ जेन्युइनली नल्लीपैरस वुमेन, तो उनका प्लाज्मा लिया जा सकता है, प्रोवाइडेड उनका हीमोग्लोबिन अच्छा है, वेट अच्छा है, वो सब बाकी क्राइटेरिया भी होती हैं, वो सब में अगर जी। वो बैठ गई तो प्लाज्मा यूज किया जा सकता है। हमारी एक व्यूअर है निवेदिता सिंह, वो पूछ रही है, अ श्योर। लेडी विथ थायराइड इज अनेबल टू डोनेट ब्लड, कैन शी डोनेट प्लाज्मा? आई थिंक शी कांट। सो व्हाट डू यू से मैम? या तो वही मैं बता रही हूँ, खुद में अगर फिटनेस होगी ना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, कोई भी चीज के लिए अगर आप गोलियां ले रहे हैं या आप में खुद में वो बीमारी है, तो आप दूसरे की मदद से ज्यादा उनका नुकसान करेंगे, क्योंकि आपकी ब्लड में वो मेडिसिन या वो बीमारी ऑलरेडी है। तो इसलिए दोज पीपल आर यूजुअली अवॉइडेड एज अ डोनर, इवन फॉर ब्लड, इवन फॉर प्लाज्मा। मैम, एनी रिस्क्स प्लाज्मा डोनेट करते वक्त या करने के बाद? कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स या रिस्क होते हैं? देखिए, प्लाज्मा जो डोनेट किया जाता है, मैंने बताया कि सिर्फ 500 ml लिया जाता है। 500 ml इज एक्चुअली अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी जो हमारी ब्लड में होता है। प्लाज्मा वो 5 लीटर के आसपास होता है, उसमें से हम 500 ml लिए, तो ऐसे पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। कोई कोई लोग बोलते हैं हमारी खुद की इम्यूनिटी तो चली जाएगी ना उससे, अगर हमने हमारी एंटीबॉडी दूसरे को दे दी तो हम तो विदाउट इम्यूनिटी रहेंगे, विच इज अ वेरी रॉन्ग जी। कॉन्सेप्ट। क्योंकि जो हमारी एंटीबॉडीज हैं उसका लेस देन 10% आप डोनेट कर पाएंगे, आप चाहे भी तो उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और ओके। आप खुद, क्योंकि आपकी बॉडी में अभी अभी ये इन्फेक्शन हुआ है, तो यू कीप मेकिंग दोज एंटीबॉडीज, तो दो एंटीबॉडीज विच यू आर डोनेटिंग विल बी रेप्लेनिश्ड इन लेस देन 48 आवर्स। तो ये मिथ है। बाकी हाँ, अभी कभी कभी किसी को होता है कि प्लाज्मा डोनेट किया तो थोड़ा चक्कर आता है, बीपी लो होता है, ये स्मॉल साइड इफेक्ट्स होते हैं जो इमीडिएटली करेक्ट भी हो जाते हैं, बट दीज आर नथिंग कंपेयर टू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाज्मा डोनेशन। Ma'am, Mr. Mahesh Kriplani is appreciating the way you are sharing. I think I'm sure he's your father, but then there is this question also he is asking. Okay, so the question अच्छा, is मेरे एग्जाम कि देने में बहुत मजा आता है सबको। नहीं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि will the monoclonal antibodies in convalescent plasma be equally effective against variants also? अब देखिए, ये बहुत डीप सवाल है। कहने का मतलब, अभी हमको मालूम है कि कोविड पहले आया, अब उसका वेरिएंट या नहीं, वो म्यूटेंट भी हो गया। ये वायरस की फितरत जी। होती है। एक जी। वायरस इज केपेबल ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ, म्यूटेंट होने का बहुत
इजीली वो कर सकता है। तो अब इट डिपेंड्स ऑन मेरे को कौन सा वेरिएंट आया था कोविड का। अगर मेरे को समझो मेरे को XYZ म्यूटेंट आया था, तो मैं XYZ के ही अगेंस्ट एंटीबॉडी बना पाऊंगी। फिर मेरे को ABC म्यूटेंट आएगा तो उसके अगेंस्ट मेरा प्लाज्मा इफेक्ट नहीं रहेगा, बट इसके अगेंस्ट कोई भी स्टडी एज सच नहीं की गई है। और प्लाज्मा एज सच एक बहुत अर्ली ट्रीटमेंट है, और इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट ऑल्सो, इट इज अ सपोर्टिव इमरजेंसी ट्रीटमेंट। तो म्यूटेंट का अगर एक सिवियर म्यूटेंट है मेरे अंदर, तो उसमें प्लाज्मा एक्ट करेगा कि नहीं करेगा। इनफैक्ट अगर वही सेम वेरिएंट है उसमें भी प्लाज्मा इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, दैट नोबडी कैन से। इनफैक्ट I mean, I should not say this, but COVID convalescent plasma का effectivity, it has shown good results, it has shown bad results, and it has shown everything in between. तो किसी को असर करता है, किसी को नहीं भी करता है। अब वो सेम म्यूटेंट हो, डिफरेंट म्यूटेंट हो, दैट नोबडी कैन से कि ये उसको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। तो मैम प्लाज्मा का रोल कहाँ से शुरू होता है? मतलब आपका RT-PCR आया, आप नेगेटिव हुए, आपका HRCT आया, आप फॉर एग्जाम्पल आप 15+ HRCT हुआ आपका, आप एडमिट हुए, आपको ऑक्सीजन लेवल का प्रॉब्लम है, आपका ऑक्सीजन नॉर्मल आया, आप 17 दिन हॉस्पिटलाइज रहे, उसके बाद आप घर आए, अभी भी आपको कहीं ना कहीं आपका लंग तो इन्फेक्टेड है ही। प्लाज्मा का रोल कहाँ पर आता है? वेयर शुड पीपल देखो स्टार्ट टेकिंग प्लाज्मा इन? मीनिंग पेशेंट की डोनर, आपने जो सवाल पूछे, ये जो स्टोरी आपने मैं बताई, पेशेंट की बात कर रहा हूँ, ये पेशेंट तो की बात देखो, कर रहा हूँ। हाँ, ये तो आपने जो मुझे अभी स्टोरी पूछा ना, इतने सारी चीजें हो गई। इन सब चीजों इस स्टेज पे तो प्लाज्मा का कोई रोल ही नहीं है। अभी अगर वो अच्छा। आपको बुखार आया, आपने RT-PCR किया उसी दिन, और आप हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, समझो मेरी उम्र 60 साल की है, मुझे डायबिटीज भी है, मुझे हार्ट डिजीज भी है, मुझे सब कुछ है, और मेरे को बुखार आ गया, जी। और मैंने टेस्ट कराया और मेरे को कोविड निकला, और मेरे को बोला कि अभी तुमको बुखार भी है, तुमको सैचुरेशन भी मेंटेन नहीं हो रहा है, तुम्हारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है, चलो भर्ती हो जाओ। मैं भर्ती हुई, आज से लेके अगले 7 दिन तक ही मेरे को प्लाज्मा का रोल है तो है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ओनली इन दी अच्छा। अर्ली स्टेजेस। 10 दिन बाद जब मेरे को और सिवियर कुछ हो गया, मेरा लंग भी इन्वॉल्व हो गया, सब हो गया, उसके बाद तो कोविड का प्लाज्मा का तो कोई रोल ही नहीं है। इट इज ओनली इन दी ओके। अर्ली अब स्टेजेस। अभी चोर जस्ट घर में घुसा हो तभी आप अपने डंडे यूज कर सकते हैं, उसके बाद जब वो अंदर आपके लॉकर में घुस गया हो, उसके बाद नहीं कर सकते आप कुछ। ठीक है, तो मैम मुझे ये चोर वाला एग्जाम्पल बड़ा अच्छा लग रहा है आपका, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा आपसे कि जी मैम ये मैं पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछ रहा हूँ। अब अगर पेशेंट को थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये कब से शुरू होता है? अब नॉर्मल के लिए तो आपने बोला कि 6 दिन में शुरू हो जाना चाहिए, 6 दिन तक ही वो इफेक्टिव रहता है। ये सब पेशेंट्स के लिए कब वो रोल आता है? यही सब पेशेंट्स को जब बुखार आता है तभी उनको एडमिट किया जाता है। जो ओके। देखिए, एक तो कोविड का ऐसा है कि कोविड एवरी बॉडी के साथ अलग बिहेव हो रहा है। मतलब इवन यंग पेशेंट, स्ट्रॉन्ग फिट एथलेटिक पेशेंट्स को भी कोविड सिवियरली इफेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट अभी आप अगर पेपर में पढ़ रहे हैं तो इवन 101 102 वाले भी निकल के आ रहे हैं कोविड से। जी। तो कौन सा पर्सन, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। सो वी कैन नॉट जनरलाइज कि हाँ भाई तुम्हारा हार्ट डिजीज है, तुम्हारा 60+ है, तुमको ये सब चीजें हो गई तो तुम तो अभी गए, तुमको कोविड हुआ, तुम हॉस्पिटल में जाओगे और हॉस्पिटल वापस आओगे क्या? ये यू कैन नॉट जनरलाइज, जो एक्चुअली सब लोग कर लेते हैं। यू मे जी। नॉट लाइक इट, बट सब लोग, अभी आज कोई 70 ईयर्स का विद 4-5 बीमारियों के साथ हॉस्पिटल में जाएगा तो सबको ये डर लगता है कि वापस आएगा कि नहीं। बट हम्म। हॉस्पिटल में एडमिट होने के भी क्राइटेरियाज हैं। और जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, जैसे थायराइड है, BP है, ये सब लोगों को कब प्लाज्मा देना चाहिए? कोई भी पेशेंट हो जिसको अर्ली स्टेज, जिसको जस्ट सिम्टम आने शुरू हुए हैं, उसका सैचुरेशन 93 से नीचे गिरने लगा है, उसको रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने लगा है, रेस्पिरेटरी रेट में सांस लेने में जी। जब तकलीफ होती है तो करके वो कोशिश करता है, तो उस तरीके से उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने लगता है, जो 24 के ऊपर जाने लग गया हो, ऐसे क्राइटेरिया में उसको एडमिट तो कर ही देते हैं। ऐसे पेशेंट्स को, वेदर ही हैज अदर कोमॉर्बिडिटीज, थायराइड, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, डायबिटीज, जी। हाइपरटेंशन, ये सब हो या ना हो, अर्ली स्टेजेस में हम्म। आप सपोर्ट करने के लिए उसको, अब वो उनको और इम्यूनिटी देने के लिए आप कोविड कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा देते हैं।
दिस इज नॉट अ श्योर शॉट ट्रीटमेंट ऑल्सो। मैं आपको ये भी बता दूं कि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा आज कोविड के लिए नहीं डिस्कवर हुआ, ये 1918 से चालू है, जब वो इन्फ्लुएंजा के पैंडेमिक्स आए हैं, स्वाइन फ्लू की पैंडेमिक, थेरेपी हैज बीन सीन टू सपोर्ट द ट्रीटमेंट, इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट इन इटसेल्फ। तो एज अ सपोर्टिव केयर तो मैम शुरू कर ही देते हो। ठीक है मैम, ये सवाल मैं भी पूछने वाला था, मोनिका मैम ने भी अभी पूछा कि आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ डोनेटिंग प्लाज्मा? जैसे वैक्सीन कोई लेने जा रहा है तो उसको जैसे ही उसको वो वैक्सीन मिल रहा है वो उसको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, मतलब बुखार हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, तो जैसे वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट्स हैं, क्या प्लाज्मा डोनेट करने के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं? नहीं, प्लाज्मा डोनेट करने का एक छोटा सा साइड इफेक्ट कुछ कुछ पेशेंट्स को होता है, विच इज उनको, क्योंकि उनकी बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है तो दे माइट फील अ लिटिल डिजी, ब्लड प्रेशर थोड़ा ड्रॉप हो सकता है, इसलिए उनको डोनेट करने के बाद थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, दे मेक श्योर कि उनको ही इज जनरली ऑल राइट, एंड आफ्टर दैट वो भी कुछ कुछ लोगों को होता है, दोज हु आर इन जनरल डिहाइड्रेटेड या उनका प्रेशर इज ऑन द लोअर साइड, उनको ये साइड इफेक्ट्स काफी कॉमनली देखा जाता है। अदरवाइज देयर आर नो मेजर साइड इफेक्ट्स टू फॉर डोनेटिंग प्लाज्मा एंड ब्लड आल्सो फॉर दैट मैटर। ओके मैम, एक व्यक्ति कितनी बार प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? बंगाल में एक डोनर है जिसने आई थिंक अभी तक 50 टाइम्स कर दिया है डोनेट, सो यू कैन डोनेट एवरी 15 डेज। क्यों क्यों आप डोनेट कर सकते हैं एवरी 15 डेज? क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, एक स्पेशल मशीन होती है, फेरेसिस मशीन, जिस पर अटैच किया जाता है, आपका ब्लड लेते हैं, उसमें से प्लाज्मा अलग करते हैं, बाकी का ब्लड आपको लौटा देते हैं। तो जब बाकी का ब्लड आपको जी लौटा ही रहे हैं और प्लाज्मा तो आप जल्दी जल्दी रेप्लेनिश होने ही वाला है, तो आप एवरी 15 डेज में आप डोनेट कर सकते हैं। मैम, अच्छा, प्लाज्मा का रीजनरेशन? दिस इज प्रोवाइडेड आपको कोविड होके यू कैन डोनेट अप टू 3 मंथ्स, उसके बाद तो आपके एंटीबॉडी लेवल भी कम होने लग जाएगी। सो आपका एंटीबॉडी लेवल भी कितना टाइम तक मेंटेन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, पर अप टू 3 मंथ्स सिंस यू टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड। ओके, सो मैम रीजनरेशन की जो बात है, आपकी बॉडी में रीजनरेशन ऑफ जी प्लाज्मा, वो कितने दिनों जी, में होता है? इमीडिएटली विद इन 24 आवर्स, 24 to 48 आवर्स मैम इतने प्लाज्मा जल्दी तो टाटा रीजनरेशन। नैनो भी नहीं बनती। तो टाटा नैनो जितनी गन्स तो नहीं मांग रहे ना, तो बहुत छोटी बात है प्लाज्मा। ये भी सही बात। मैम, जब यू नो व्हाट, मैं चाहता हूँ आप हमें ये बताएं, व्हाट आर द टिप्स यू नो यू लाइक टू गिव इट फॉर द सेफ प्लाज्मा डोनेशन? ये मेरा आखिरी सवाल प्लाज्मा होगा। डोनेशन, नहीं आप आखिरी सवाल पूछो, उसके पहले मैं एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल बोलिए मैम। आप लोग सब लोग इतना दिस टॉपिक, टुडेज टॉक इज बेस्ड ऑन प्लाज्मा, बट नॉट जी एवरीबडी इज फिट एज अ प्लाज्मा डोनर, क्योंकि मैंने बताया बहुत सारी क्राइटेरिया है कि कोविड से रिकवर होके हमारे अंदर भी उतनी एंटीबॉडी, 13 के ऊपर एंटीबॉडीज आना सबका नहीं होता है। बहुत लोगों को जी। अच्छा खासा कोविड हो गया तो भी उनकी एंटीबॉडीज नॉर्मली होती है। So very few people actually fit to the criteria as an eligible donor for convalescent plasma. But it is important. अब बहुत एक सिंपल सी बात है जो बहुत लोग स्किप कर जा रहे हैं, is since you are I mean I'm talking to an enthusiastic crowd, you should consider donating blood in such times. आज एक ब्लड बैंक जो एक प्रिंसिपल पे चलता है, जिसको बोलते हैं वॉलंटरी डोनेशन, आज कोई हॉस्पिटल आके ब्लड डोनेट नहीं करना चाहता बिकॉज सब हॉस्पिटल आने से डरते हैं। हॉस्पिटल ब्लड बैंक्स आर रनिंग शॉर्ट ऑफ ब्लड, एंड इतना ब्लड जाता है, पूरा हॉस्पिटल आईसीयू इज फुल, एंड अदर पेशेंट्स आर आल्सो स्टिल देयर, इमरजेंसी सर्जरीज आर हैपनिंग, कीमोथेरेपीज आर हैपनिंग, कार्डियक केसेस आर कमिंग इन, सेप्सिस हो रहा है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, सब चीजें हो रही है, तो ब्लड बैंक इज स्टिल एक्टिवली रनिंग, बट देयर आर नो डोनर्स कमिंग टू डोनेट ब्लड। प्लाज्मा तो चलो आप कोविड की ट्रीटमेंट के लिए बात कर रहे हैं, बट ब्लड तो आप डोनेट कर ही सकते हैं ना। So please consider donating blood as well. If you are not an eligible plasma donor, you can be an eligible blood donor. So that is a very important मैम message that I want to give everybody today. मैम, एक और बात जो हमारे एक व्यूअर ने आपसे पूछा, करुड़ी आहूजा देख रहे हैं, उन्होंने आपसे पूछा कि कैन अ वैक्सीनेटेड पर्सन बी अ प्लाज्मा डोनर? आई वांटेड टू आस्क दिस क्वेश्चन, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। देखिए, मैंने आपसे क्या बताया कि एंटीबॉडी लेवल 13 के ऊपर होना चाहिए तभी आप एलिजिबल डोनर होंगे। अगर आप किसी वैक्सीनेटेड इंसान का एंटीबॉडी लेवल देखेंगे ना, वो 200 300 ऐसे 100 के वैल्यूज में होगा, इतना हाई एंटीबॉडी जी हो जाता है। सो ऑफ कोर्स अ जी वैक्सीनेटेड पर्सन कैन डोनेट, बट वो एंटीबॉडीज जो उसको वैक्सीन से मिली हैं
वैक्सीन का भी एक अलग टॉपिक है एक्चुअली इफ यू सी, पर वैक्सीन बेसिकली यही करता है कि एक डेड वायरस या एक वायरस का एक पार्ट हमारी बॉडी में डाल देता है, जिससे हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है। तो वही जी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बना लेती है, और इतनी बनाती है कि हम खुद इम्यून रहते हैं। एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स वी थिंक वी विल बी इम्यून फ्रॉम कोविड वायरस। पर वो 200-300 वाली जो वैल्यूज होती है, तो वैक्सीनेटेड पर्सन कैन डोनेट ब्लड, बट आप ये भी समझें कि वो दोनों शॉट ऑफ वैक्सीन होके उसको भी एटलीस्ट 15 डेज हो जाने चाहिए। आज ऐसे कितने लोग हैं जिनका दोनों शॉट ऑफ वैक्सीन होके 15 दिन हो गया हो? इंडिया में तो बहुत, जी ऑफ कोर्स मेडिकल स्टाफ एंड जिनका फर्स्ट राउंड में हो गया वो अलग बात है, बट 45 जी यानी 18 to 60 एज ग्रुप में बैठते हुए ऐसे कितने लोग हैं जिनका सब वैक्सीनेशन होके 2 हफ्ता हो गया हो? ऐसे बहुत कम लोग हैं। मतलब इट इज बहुत कम। लेस देन 20% ऑफ आवर पॉपुलेशन। सो ट्रू दिस मैम। इज दिस दिस इज अंडर स्टडी। अभी कोई भी रैंडमाइज ट्रायल्स तो हुआ नहीं है, but a vaccinated person can surely donate plasma for COVID patient. तो मतलब जो लोग प्राइवेट डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बहुत ज्यादा फीस भर रहे हैं इस वक्त, उनसे वो लोग डॉक्टर्स से प्लाज्मा भी ले सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया, रिटर्न हमारे गिफ्ट, रिटर्न हॉस्पिटल गिफ्ट में मैम। हमारे हॉस्पिटल में हम सब ने एक एक बार ब्लड डोनेट कर दिया है, क्योंकि ब्लड ही नहीं है ब्लड बैंक में, ओके। और रोज ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही है। तो प्लाज्मा के लिए तो हर कोई नहीं सूटेबल है, लेकिन हम सब ब्लड तो बहुत रेगुलरली डोनेट करते हैं, क्योंकि हम ही हॉस्पिटल में बैठे हैं और तो कोई आ ही नहीं रहा। सच बात। मैम V7 फाउंडेशन ये जो इनिशिएटिव ले रहा है आस्किंग पीपल टू डोनेट प्लाज्मा, वुड यू लाइक टू शेयर योर व्यूज ऑन इट? I began my talk with that. It is very nice to see that a part of the general people who actually, I don't know whether they're getting enough credit for what they're doing. Everybody is scared to step out. But if they're stepping out for someone who they don't even know, for strangers to help them out, it is really creditable, and it's very nice to hear. I was just, before we started talking, I was listening to Monica Auntie talk about how she's helped since the first wave, how the entire organization. So I would, I'm very touched, and I would like to encourage them, if there's any help that they need from me or from any my colleagues or from any side of the medical fraternity, I'll try my best to help in whatever capacity I can. But like one thing, like today's talk made me realize that nobody knows about blood donation. Uska significance log bhul gaye abhi, because plasma donation is now suddenly the in thing. So that is why these small things, if they want to discuss, they want to have a scientific aspect of that, I'm always available. But kudos to them. I would like to salute V7 Foundation. मैम आपने अपना वक्त दिया, मैं ये बिल्कुल बात समझ पा रहा हूँ कि आप ब्रिज कैंडी जैसे इतने हाईली अप्रिशिएटेड या बहुत बड़े अस्पताल में आप काम कर रही हैं, वहां पर इतनी बड़ी जगह पर बैठी हैं और फिर भी आपने अपना वक्त दिया। आई थिंक दिस इज गिव अवे जो आप दे रही हैं टू द नागपुर सिटी, एंड आई एम श्योर पीपल ऑफ नागपुर रियली मिस यू, एंड थैंक यू। I am missing Nagpur. I've been wanting to come home for a very long time. But when Don't I come, was ma'am. told that Stay there. देखो Don't आप come. और हम Stay बराबर ही there. है। जो यहाँ है वही सेम वहां पे भी चल रहा है, कोई फर्क नहीं है। बट व्हेन आई रियलाइज कि कितने क्वेश्चंस होते हैं, अभी आज यही बात हो रही है कि गवर्नमेंट ने ऐसी कोई गाइडलाइंस ही नहीं इशू की है, देयर इज नो गवर्निंग बॉडी जो आम जनता को समझा सके ऑफ थिंग्स, व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट, हु कैन डू व्हाट एंड व्हेन नॉट। So if there are questions, I'm always free to answer them. When Monica Aunty told me that she was confused when Nalli Paris women were being rejected for plasma donation, I thought, "Kya re, haan, ye to kitni simple si baat hai," but people don't know it, and they're coming out of the way to help, and then suddenly they're being rejected. So these simple bridges, if there are any more, I would be very happy to help you with your questions, and it is my pleasure. Please, you don't have to thank me for it. No, ma'am. Really, thank you so much for all the time and all the knowledge you gave us. Thank you so much. My pleasure. Thank you. Well, डॉक्टर दीक्षा सुवर्णा ने हमसे बात करी अभी। ब्रिज कैंडी मुंबई में काम कार्यरत हैं वो, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और शायद जितनी सारी इंफॉर्मेशन उन्हें हमें इस वक्त दी ऑन द प्लाज्मा डोनेशन, आई गेस वो अपने आप में बहुत सराहनीय है। उन्होंने बताया कि बंगाल में कोई है जिन्होंने अब तक 50 बार ब्लड डोनेशन किया है, लेकिन जहां नागपुर में लोग प्लाज्मा डोनेट करने में बहुत पीछे
होते जा रहे हैं, वहीं पर एक लड़की बिल्कुल तलवार स्वरूप निकल कर आती हैं और क्या कर मतलब तलवार स्वरूप इसलिए निकल कर आती हैं और जो रेगुलर ट्रेडिशन है उसको तोड़कर एक लड़की 2 बार प्लाज्मा डोनेट करती हैं और वो इस वक्त मेरे साथ है। मेरे से इस वक्त आकांक्षा तलवार। हाय आकांक्षा, Hi, हाउ आर यू? I'm good. How are you? यू टेल मी, 2 बार प्लाज्मा डोनेशन किया, पहले तो ये बताइए कि आपको कोविड कब हुआ? मुझे कोविड पिछले साल नवंबर में हुआ था। तो मिड नवंबर में मैं रिकवर हो गई थी। और उस टाइम में एक्चुअली मैं दिल्ली में थी। उसके बाद मैं और मेरे डैड हम बाय रोड वापस आए नागपुर, बिकॉज ऑब्वियसली फ्लाइट्स कम्युनिकेशंस बंद हो चुके थे। राइट। जी। तो बस नवंबर में हुआ था एंड देन उस टाइम पे तो उतनी एंटीबॉडीज थी नहीं, बिकॉज मैंने डोनेट करने के पहले 3 बार एंटीबॉडी टेस्ट कराया था। अच्छा। हाँ, तो स्टार्टिंग में 6 से स्टार्ट हुआ था मेरा, मतलब फर्स्ट टेस्ट जब कराया था तो 6 एंटीबॉडीज थी। देन थर्ड टेस्ट में 11 आई थी एंड आई थिंक उस टाइम पे जैसे डॉक्टर दीक्षा ने कहा कि उस टाइम 8 के अबव आप डोनेट कर सकते थे, तो जी। तब फिर मैंने फर्स्ट टाइम उसके बाद डोनेट किया था। और ये जो पूरा का पूरा थॉट था कि मैंने एक बार डोनेट कर दिया, ये डोनेट डेफिनेटली मैंने प्लाज्मा डोनेट किया तो किसी न किसी को मदद करेगा, किसी की जान बचाएगा, दूसरी बार डोनेट करने का ख्याल कहाँ से आया? दूसरी बार ऐसा था कि हम नागपुर में स्पेशली इतना कोविड स्प्रेड हो चुका है कि आजकल ये है कि आप जिनको जानते हो उनको भी कोविड हो रहा है। जी। तो दूसरी बार एक्चुअली ये हुआ कि हमारे काफी क्लोज एक रिलेटिव हैं, थे, सॉरी टू से, बट ही वाज 80। तो उस टाइम पे उनको कोविड हुआ एंड ही वाज वेरी लाइक वही एडमिट हुए एंड उनको प्लाज्मा रिक्वायर्ड था। एंड वही जैसे डॉक्टर दीक्षा ने कहा कि लोग नहीं आगे आ रहे हैं, लोग प्लाज्मा डोनेट नहीं कर रहे हैं, तो प्लाज्मा अवेलेबल नहीं था उस टाइम। तो हमें पता जब लगा मुझे और मेरे पापा को, तो हमने कहा कि चलो हम एटलीस्ट हमारे बाकी लोग तो ठीक हैं, बट अगर हमारे घर में किसी को जरूरत है तो हमें करना ही चाहिए हेल्प। तो हमने बस तब सेकंड बार तब मैंने डोनेट किया। तो जब आप पहली बार डोनेट करने के लिए जा रही थी तो डिड यू कंसल्ट अ डॉक्टर जिन्होंने आपको कुछ डूज एंड डोंट्स बताए, कोई चीज ऐसी कि खान पान में किस किस्म का ख्याल रखना है या क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। मैं एक्चुअली पहले काफी बार ब्लड भी डोनेट कर चुकी हूँ, तो मुझे पता था कि मतलब अगर आप हेल्दी हो, अगर आप फिट फील कर रहे हो तो आप डोनेट कर सकते हो। एंड मेरे फादर एक बार पहले डोनेट कर चुके थे, तो क्योंकि उनकी एंटीबॉडी ज्यादा थी। तो जब वो सेकंड टाइम डोनेट करने गए तो मैंने कहा कि मैं भी डोनेट करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ चेंजेस खाने में या कुछ आपको करने की जरूरत है। मतलब नॉर्मल जैसे हम खाना खाते हैं, काफी न्यूट्रिशनस खाना ही होता है, रोटी सब्जी। जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ अलग करने की जरूरत है प्लाज्मा डोनेट करने के पहले या बाद में। और ऐसा तो मैंने कंसल्ट नहीं किया, बस वहां जाके आपका पहले टेस्ट होता है, एंटीबॉडी टेस्ट। एंड उसके बाद अगर आपका 10 के अबव या जो भी अभी क्राइटेरिया है 13 के अबव होता है, तो देन वो आपका प्लाज्मा ले लेते हैं। डू यू विश टू डोनेट अगेन? आई डू, बट आज ही एक्चुअली आई गॉट माई सेल्फ वैक्सीनेटेड। तो जैसे डॉक्टर दीक्षा ने कहा कि अब आई कैन डोनेट इट आफ्टर 15 days और whatever, तो डेफिनेटली अगर आई एम एबल टू डोनेट इट तो व्हाई नॉट। लोगों को कोरोना वायरस हुआ, लोग इन्फेक्ट हुए, लोग ठीक हुए, लोगों के अंदर में एंटीबॉडीज बन गई, प्लाज्मा डोनेट करने की पूरी काबिलियत है, लेकिन लोग कर नहीं रहे, क्या वजह मानती हैं उसको? मेरे को लगता है कि लोग अवेयर नहीं है, क्योंकि वही जैसे डर है कि पता नहीं प्लाज्मा डोनेट करने से क्या होगा, वीकनेस तो नहीं हो जाएगी, या कोविड फिर से तो नहीं हो जाएगा, या फिर जो भी कि हम कर सकते हैं या नहीं, ये भी डाउट्स हैं। तो आई होप कि काफी कुछ तो क्लियर हो गए हैं लोगों को अभी डाउट्स, एंड लोग आगे आके डोनेट करें प्लाज्मा। You would like to give a message to all the people who are watching your show or who will watch the show later कि क्यों किसी ने प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए? मुझे लगता है कि अभी जो हालत है हमारे देश की या हमारी सिटी की या हमारे घर में जो हालत है, तो लोगों को काफी हेल्प की जरूरत है। और डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स तो हेल्प कर ही रहे हैं, बट हम जितना कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। और आई थिंक इस टाइम पे हम सबसे ज्यादा यही हेल्प कर सकते हैं कि अगर किसी को कोविड हुआ है तो आप प्लाज्मा डोनेट करो, और किसी की लाइफ अगर आप सेव कर सकते हो तो वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। क्योंकि उसके अलावा तो आजकल
और कोई तरह की हेल्प काफी मुश्किल है, क्योंकि हम सब घर पे हैं, लोग फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रांग नहीं है, तो इतना डोनेशन नहीं कर रहे हैं। बट प्लाज्मा आई थिंक सब डोनेट कर सकते हैं और करना चाहिए। एक चीज जो आप उनसे कहना चाहती हैं जो इस वक्त क्वारंटाइन है और लड़ रहे हैं कोरोना वायरस से, लेकिन उनको पता है कि आने वाले दिनों में वो ठीक हो जाएंगे और उनके अंदर में प्लाज्मा तैयार हो जाएगा, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आप जो आपका अभी एक्सपीरियंस है, जो आप कोविड के थ्रू जा रहे हैं, तो उस पे आप सोचें कि आपको कितनी डिफिकल्टी हो रही है, एंड और लोगों को कितनी डिफिकल्टी हो सकती है जो ओल्ड हैं या जिनको और कोई बीमारी है, या मतलब बीमारी नहीं भी हो कि भी अगर वो काफी सीरियस है, तो अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। अब अथॉरिटीज की अगर हम बात करें, हम एनजीओस की बात करें, V7 की बात करें, किस किस्म का एक सपोर्ट आपको मिला? किस किस्म से अगर किस तरह से इंस्पायर करते हैं ये लोग आपको? how was the treatment? Did they treat you well? Yes, definitely. If they didn't, then you can also say it on No. the camera. जब जो मैं जगह है जहाँ पर आप डोनेशन करने जाते हैं, Yes. वो जगह की स्वच्छता, वो जगह का सैनिटाइजेशन, हर चीज का ध्यान रखते हैं? बिल्कुल, मैंने लाइफलाइन ब्लड बैंक है यहाँ पे नागपुर में, वहाँ पे डोनेट किया था प्लाज्मा, एंड स्टाफ एंड डॉक्टर्स एंड जो पूरी फैसिलिटी थी काफी अच्छी थी, और सब कुछ सैनिटाइज था, एंड सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे वो, एंड ऐसा कुछ भी नहीं था। और मतलब वही आपको पूरा ध्यान देते हैं, पूरे टाइम आपके पास होते हैं, लाइक उन्होंने मशीन्स लगा रखी हैं जो आपका प्लाज्मा ले रहे हैं, बट वो हम पूरे टाइम आपको मॉनिटर करते हैं, and आपसे बात कर रहे होते हैं कि अगर आपको कुछ अलग फील हो रहा है, आपको डिजीनेस हो रही है या कुछ है, एंड काफी पोलाइट और मतलब काफी अच्छा स्टाफ है। सो And they also allow you to take selfies. हाँ, they do They do. they do Okay. एनवीसीसी के चीफ अश्विन अग्रवाल मिहाड़िया जी आपको देख रहे हैं, कहते हैं donation of plasma is a noble cause and people are really saluting you with the kind of initiative you took. I think आपके जैसे लोग जब सोसाइटी में आते हैं और लोगों तक ये बात पहुंचती है कि इस तरीके से भी चीजें सोची जा सकती हैं जो शायद नहीं सोची जा सकती थी, लेकिन आपने सोचा, शहर के बारे में सोचा, शहर के लोगों के बारे में सोचा और इस किस्म का डोनेशन किया जो शायद जब कोरोना वायरस की किताब लिखी जाएगी और कई हजारों साल के बाद जब पढ़ी जाएगी, तो उसमें एक नाम प्लाज्मा डोनेशन में नागपुर शहर से उभर के दिखेगा और सुनहरे अक्षरों में लिखेगा, वो नाम होगा आकांक्षा तलवार। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेल, आज राज की बात में हमने V7 के अच्छे कामों के बारे में जाना, हमने आकांक्षा तलवार के प्लाज्मा डोनेशन के बारे में जाना कि उन्होंने क्या सफर रहा है एक लड़की का, किस किस्म से एक इनिशिएटिव लेते हैं। V7 जो 7 महिलाएं आगे बढ़कर काम कर रही हैं, आज 120 ladies and they're happy to increase the numbers. Anybody would like to get in touch with them, please get in touch and make the numbers go more. And एक बात जो डॉक्टर दीक्षा ने हमको समझाई, जो मुंबई से जुड़ी थी, जिन्होंने प्लाज्मा के बारे में हमको पूरी बातें समझाई, मैं चाहता हूं कि ये सब चीजें आप लोगों तक शेयर करें, आप मिनिमम 10 से 15 लोगों तक, दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हम सबको प्लाज्मा के बारे में इंफॉर्मेशन पता रहे, जो बातें शायद हमको नहीं पता। अब राज की बात ये कि कई सालों पहले जब भारत को आजादी की जरूरत थी, उस वक्त भी कुछ क्रूएल आत्माओं ने इस देश को जकड़ कर रखा था और आज भी हालात वायरस स्वरूप आई हैं, तो आज भी जो देश है वो किसी और के कब्जे में। उस वक्त एक नाम आया था, वो नाम मुझे ऐसा लगता है कि देश की आजादी के सुनहरे पन्नों में है, हम आज भी उस नाम को सल्यूट करते हैं। वो नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उन्होंने ये बात कही थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। डॉक्टर दीक्षा यही कहना चाहती है कि हम अपना जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो शायद हम कर नहीं पा रहे जो हमें करना चाहिए। आज 2 चीजें हम नहीं कर पा रहे, हम अपने बारे में बहुत सारी चीजें सोच पा रहे हैं, लेकिन समाज के बारे में, जिस समाज ने हमको सब कुछ दिया, आज जो भी है हम हमारे समाज की वजह से, हमारे शहर के वजह से, हमारे प्रदेश, हमारे देश की वजह से। तो हमारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है कि हम उनको कुछ ना कुछ दें
खून देना सबसे आसान और सबसे बड़ा काम। आप कृपया प्लाज्मा अगर दे सकते हैं तो आगे बढ़कर दें। अगर आप खून दे सकते हैं तो आप खून दें। जितने भी ब्लड बैंक्स हैं वो पूरी तरीके से स्वच्छ हैं, सैनिटाइज्ड हैं और बड़ा ही सरल तरीका है खून देने का। आपको भी पता है क्या, कई बार लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लिया है। अगर आपने कई समय से खून नहीं दिया है तो शायद ये वक्त है जब शायद किसी न किसी अस्पताल में खून की जरूरत पड़ रही होगी और किसी की मृत्यु सिर्फ इसीलिए हो रही होगी क्योंकि खून की कमी थी या प्लाज्मा की कमी थी। अगर आप दोनों दे सकते हैं तो दोनों दीजिए। अगर आप प्लाज्मा दे सकते हैं तो प्लाज्मा दीजिए। अगर आप खून दे सकते हैं तो खून दे दीजिए। अब बात सीधा उनसे जो बड़े बड़े अफसर हैं, 5वां वेतन, 6वां वेतन और 7वां वेतन उठाते हैं। ये बात नेताओं को समझाना इसीलिए बेकार है क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन ये बात अफसरों को समझाना बड़ा आसान है क्योंकि वो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं। साहब, आपने ना हमको बेड दिया, ना आपने हमको रेमडेसिविर दी, ना आपने हमको ऑक्सीजन दिया और आपने हमको एडुकेट तक नहीं किया। ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। शायद आप हमको पहले तरीके से पहले दिन से आप बोल रहे हो मास्क पहनो, सैनिटाइज रखो, दूरी बना के रखो। बाकी इंफॉर्मेशन कौन देगा चाचा? बाकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? पोस्टरबाजी मत कीजिए। याद रखिए, प्लीज भारत को एडुकेट कीजिए। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें परिवार के साथ। परिवार को लेकर छुट्टी मनाने कहीं नहीं जा सकते तो कम से कम ब्लड डोनेट करने तो जा सकते हैं ना। ब्लड डोनेट कीजिए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए, खुद भी जिंदा रहिए और दुनिया को जिंदा रहने दीजिए। जय हिंद।